Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe, in the different countries, in the different continents, in the different time zones, in different mental, physical, environmental, economical conditions. But the world is a global village. All of us, we are together. आपका कहते हैं ना, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो. यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंड मदन मोहन जी का संगीत और उस पर लता जी की आवाज, एवरग्रीन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. उसी तरीके से आज के यूथ को हमें समझना होगा. यूथ इन द चेंजिंग वर्ल्ड, हाउ आर दे, how do they perceive and how they look at education, skills, competencies, talents, and what some passion they have got. Technology is bringing a big revolution to all of us. And of course, there is no comparison to travel. Life itself is a book of traveling. And when you look at it, you got to think about it: tourism and travel. Travel and tourism. When you travel, I think you learn more than reading a book or going through some content somewhere. Let's work on to, let's plan something, and let's bring another yet powerful evening for everybody together, wherever you are world over. And सबसे पहले मोहित चौधरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, साक्षी जुड़ी हैं. इन सब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. और उन्हीं के साथ साथ और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपका भी नाम थोड़ी देर में लूंगा. जो लोग YouTube चैनल पर आ रहे हैं, that is @ICSI India Live. If you just click @ICSI India Live, you'll be able to see this particular program on the YouTube, which is going world over to each one of you. So, ladies and gentlemen, on Tuesday, 6th of June, 2023, we extend a very hearty welcome to all of you. It's a pleasure to have all of you with us from the world over. And let me share something very interesting. Yesterday, we had a panel discussion with the very eminent leading tourist guides of India. What a wisdom, what an intellectual capital, what a knowledge. When you talk about history, geography, culture, art, craft, heritage, souvenir, anything you talk about, dance, music, these people are legends. They're an authority and they are so wonderful. We are trying to get the complete tourist guide galaxy to Chandigarh, and where we would host an event for them, with them, and we'll try and work out Chandigarh moving to the next stage and next step as far as travel and tourism is concerned. At the same time, employment, entrepreneurship, startup, new opportunities, new avenues, whether in India or overseas, world is a global village. All of us, we are together. So welcome to the world of youth, युवा पीढ़ी, युवक और युवतियां जब इनकी बातचीत करते हैं तो चेंजिंग वर्ल्ड में आइए हम सब लोग इकट्ठे चलते हैं आज के इस सफर में. बहुत इंटरेस्टिंग सफर है जब आप यूथ के साथ होंगे. ICSI, International Chamber for Service Industry, extends you a very warm welcome. ICSIindia.in. Whenever you will log in, you'll be able to see right over here. If you're interested to go overseas, if you're interested to travel anywhere in India, if you're interested to download complimentary ebook, that's a Rethinking Tourism. If you want to send your feedback, at the same time, you heard about Stephen Covey's 7 Habits of, highly people. Now there is a book, 7 Habits of Highly Fulfilled People. And this particular audio portion, if you click on our web portal homepage, you'll be able to get it. So on behalf of ICSI, International Chamber for Service Industry, this program is coming live world over from Chandigarh. So let me just endorse, and we have decided every day we will show one slide about Chandigarh, what is happening in Chandigarh, what is important in Chandigarh, what exactly new is in Chandigarh. So this morning I got the WhatsApp from the principal, Government Home Science College, Sector 10, Chandigarh. And it was such a pleasure to receive that WhatsApp from Dr. Sudha Katyal ma'am, and she mentioned, feel immensely pleased to announce that our college, that's a Home Science College, Chandigarh, has secured the 52nd rank
at the national level in the NIRF India Ranking 2023, which has been announced today by the Honorable Minister of State, that is Union State Minister for Education and External Affairs, Shri Rajkumar Ranjanji. He comes from Manipur. He's at Delhi. He's in the Union Ministry. And Madam is also writing that we feel humbled to share that the college has secured a spot among the top 55 colleges in India in 2022 and 23, and in top 100 for the last 5 years consequently. Heartiest congratulations to all children, all youth, those are studying in this prestigious college. And at the same time, the credit goes to faculty also. Team leader gets the credit. It's something like army. I come from the armed forces. Is the corps commander or the army commander who gets basically the recognition, but it is Fauj which fights, and it is soldiers who move ahead and they take into consideration. So yesterday I was sharing with you Anand Pandeyji, the president of the Tourist Guide Association, which is surrounding Delhi, and that is now we are moving to IITG, that is Incredible India Tourist Guides. But before that, it was the regional program. So he being a president, he brought some of the top people from the different languages and people and expert. There was so much to learn and so much to share with all of them. So ladies and gentlemen, we don't want to look back on 25th of March 2020, but if you go back 3 years since the pandemic wrecked, what was the attendance? Because all schools were closed, colleges were closed, institutions were closed, and altogether it was different. And in India, approximately 250 million students, they were affected due to the school closures at the onset of the lockdown, which was COVID-19, which brought havoc world over. The pandemic, it posed several challenges, in the public and the private schools, and which included something like expected it was there will be a rise in the dropouts and learning losses and increase in the digital divide. But at the same time, ladies and gentlemen, like doctors, nurses, paramedical people, they are great warriors. Some of them, they lost their lives also while saving others. At the same time, our teachers, our educators, our counselors, our coach, our mentors, our trainers, each one of them, they had put in so much of efforts. We are proud of them, what all they had brought. Now, it was something very alarming. And if you look at this situation, we got to empower our young people to shape our future. This is something very important. What are the world's young, our youth doing? Now, what exactly is the number? Let's see that also. When you visualize the youth development, what comes to your mind? World over, the population, approximately 8 billion. And under the age of 30, I'm not talking about 24, please mark my words. I'm talking about people under the age of 30. When I look at them, over here it comes to our mind that more than 50% population of India, they would be in the category of the youth less than the age of 30. Now, these 4 billion so-called young people, the youth, do we really know that where are the opportunities for these youth development? Which are the communities which are mobilizing support for them? And युवा पीढ़ी सोचती क्या है, युवा पीढ़ी क्या चाहती है, युवा पीढ़ी को क्या अच्छा लगता है? There are a number of things which we have to understand. And these young people, when you look at them, and we got to be taking care of their mental wellness, physical wellness, environmental wellness, economic wellness, financial wellness, global wellness, all that we have to take into consideration. उस सब के लिए हमें क्या चाहिए? We got to promote bonding. We got to foster resilience. We got to promote social, emotional, cognitive, behavioral, and moral competencies. We got to foster the self-determination. We got to foster spirituality, meditation, yoga, happiness, joyful learning. And at the same time, we got to foster self-efficacy.
We got to foster clear and positive identity. We got to foster belief in the future. We got to provide the recognition for the positive behavior and the opportunity for the pro-social involvement. And at the same time, ladies and gentlemen, there are a couple of features of the positive development settings like physical, psychological safety, appropriate structures are needed, supportive relationship is needed. There are lots of opportunities to belong because they should feel we are needed, we are required, हमारी जरूरत है और हमारे तरफ से समाज में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स हैं, सपोर्ट फॉर एफिकेसी एंड मैटरिंग, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल बिल्डिंग, integration for families, schools, colleges, universities, skill centers, and community efforts, all of us together. Ladies and gentlemen, youth कहते हैं, we are the agent of change. Youth needs to be agile, and at the same time, they got to explore new opportunities in the globalization. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, नो कास्ट, नो क्रीड, नो प्लेस, एवरीथिंग इज, एंड यूथ जो है, दे वांट टू डिस्कवर, वो अपने आप को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड कौन सा प्रोफेशन, कैसे अपने आप को एम्पावर करें, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वर्ल्ड ओवर जो कुछ हो रहा है उस पर हमारा इम्पैक्ट क्या होगा, how there can be a sustainable world, how we can save our environment from deterioration, how there can be a development in this society, how the world can be sustainable, and at the same time, how children can be happy. Learn how young people are changing the world. We got to see youth at different stages, at different age groups, at different profiles, in different environments, in different countries, and at the same time, technology is playing very important role. ये देखिए, चार लोग हैं, चारों इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन चारों को आप महसूस कर सकते हैं कि अलग अलग, सबसे पहले वाले शख्स को देखें जो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपनी ही दुनिया में है, वो शायद डिजिटल वर्ल्ड में है, वर्चुअल वर्ल्ड में है। सेकंड वाले बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जो थर्ड वाले हैं वो इंटरेस्टेड है फोर्थ वाले में कि वो क्या कर रहे हैं। एंड दैट इज द वे हाउ द वर्ल्ड इज गेटिंग कनेक्टेड। द वर्चुअल वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द रियल वर्ल्ड। किस दुनिया में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, और ये जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी सब जगहों पे जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या हम उन्हें कभी मिलेंगे, क्या उनसे कभी बातचीत करेंगे, क्या उनके साथ हम कहीं ग्रो कर पाएंगे, क्या हम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और मिशंस को अचीव कर पाएंगे। रियल दुनिया और वर्चुअल दुनिया, इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आनंद पांडे जी हैज आल्सो जॉइंड, हार्टी वेलकम टू हिम। एंड उन्हीं के साथ साथ विधि जायसवाल मैम, हार्टी वेलकम टू यू। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जौहरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारे लोग जो शख्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सब के लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये सभी गुणीजन हैं, इन सब से बहुत कुछ सीखना है। वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। नाउ लिसन जेंटलमैन, इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड यू गॉट टू फाइंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ। मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये रियल हैप्पीनेस है कि कॉस्मेटिक हैप्पीनेस है कि वर्चुअल हैप्पीनेस है, और किस चीज में मन लगता है, किस चीज में दिल लगता है, कौन सी कंपनी कहाँ कैसी चाहिए। स्किल्स फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड। कल हम आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर आएंगे। What kind of skills and competencies and capabilities and the talents and the passion is required, advancing the quality learning for the vibrant societies and the communities in the future. Ladies and gentlemen, your mental health is very important. एक बड़ी अच्छी term है, अगर आपको याद हो, there is no price tag for peace of mind. There is no price tag for peace of mind. आपकी शांति से बड़ा जिंदगी में और कुछ नहीं है। यू नीड पीस। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल हैप्पीनेस को कहां से लाएं, कैसे लाएं, किस तरीके से लाएं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में
जहां हम ग्लोबलाइजेशन की बातचीत करते हैं, वो पर्सनलाइजेशन कहां से आएगा? और ये जो हमारा मस्तिष्क है, जिसके ऊपर से तकरीबन 60 to 70,000 थॉट्स दे क्रिस क्रॉस एवरी डे। और ध्यान से सुनिए, most of the thoughts by nature are negative. You got to put in positive conscious efforts to make them positive. That is something very important which everybody has to understand. अगर संसार को बचाना है और इस पृथ्वी को बचाना है, और आप इस सुरक्षा कवच को लेकर, इफ यू थिंक ओवर हियर व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं टूरिज्म इज अ पासपोर्ट टू द पीस। बिकॉज टूरिज्म के माध्यम से जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप कहीं जाते हैं, औरों से मिलते हैं, औरों से बातचीत करते हैं, उनके कल्चर को, उनकी सभ्यता को, उनके नॉर्म्स को, उनके एटिकेट्स को, उनके मैनर्स को, उनके जेस्चर को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग को जब आप समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। और युवा पीढ़ी कहती है आवर टाइम इज नाउ, यंग पीपल चेंजिंग द वर्ल्ड with a forward, let's see, world, empower the youth. इनको मौका दीजिए, इन्हें अवसर दीजिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, एक बात समझिएगा, आप उतने ही बूढ़े हैं जितना बूढ़ा आप सोचते हैं, और आप उतने ही यंग हैं जितना यंग आपकी थॉट प्रोसेस है। और देखिए, क्लाइमेट चेंज की जब हम बातचीत कर रहे हैं, मई के महीने में, जून के महीने में बारिश हो रही है, मॉनसून जैसा मौसम है, रात को बिजली कड़कती है, और बहुत सारे फार्मर से मैंने बातचीत की, दे हैड हार्टी लाफ, दे सेड खुदा मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि जो चावल की खेती में हमने पानी लगाना था उसकी जरूरत नहीं पड़ी, और पानी बराबर का, इक्वल का, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गांव नहीं, कोई रूरल नहीं, कोई अर्बन नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई फार फ्लंग एरिया नहीं, सब जगह पर खुदा ने अपनी नियामत दी, और खुदा ने आप लोगों को इतने अच्छे से। सो ग्लोबल यूथ का जो फोरम है, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हमें यूथ को मेंटल वेलनेस भी देनी है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 which was given on 29th of July 2020, will it empower the youth for the future challenges? And at the same time, बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिसी बनती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, पॉलिसी मॉनिटर होती है। 3.1% जब हम अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, तो बदलाव कहां से आएगा? उन कंट्रीज को अगर कोई यूट्यूब के ऊपर जल्दी से लिख के मुझे देगा, तो आज की शाम आपको इनाम मिलेगा। कौन सी दो कंट्रीज के नाम लीजिए जो 20% ऑफ देयर जीडीपी दे स्पेंड ऑन एजुकेशन सेक्टर। They spend 20% of their GDP on education. Which are those two countries? Come on, name two countries जो सबसे पहले भेजेगा कि 20% कौन सी दो कंट्रीज हैं। आप देखिए, गूगल बाबा आपके पास है, जीपीटी आपके पास है, आप कहीं से भी कीजिए। सो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन बाय अंडरस्टैंडिंग यूथ की इंस्पिरेशन। एक तो एग्जाम बहुत कम होने चाहिए, दूसरी बात, खाली जॉब्स के बारे में नहीं, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमको एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बारे में भी सोचना होगा। व्हाट आर द न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर कमिंग अप एट द सेम टाइम। जो आज पढ़ा रहे हैं, ये तब तक रेलिवेंट रहेगा जब तक बच्चे पास आउट होंगे। दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन, यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन किस चीज का? इंडिविजुअल के टैलेंट का और उसके पोटेंशियल का। At the same time, developing self identity and self confidence. मैंने परसों भी कहा था, अगर आपको याद हो, एनआरआईज के प्लेटफॉर्म पे रात को 8 बजे आपके साथ जब बातचीत की थी, I told you that particular day our chamber is working day and night, क्योंकि इसके बारे में दिमाग में इतनी खलबली चल रही है कि ये जो आइल्स का एग्जाम होता है, जिस आइल्स के एग्जाम के लिए भारत में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, आइल्स की पहले तैयारी करो, फिर आइल्स का एग्जाम दो, अगर आप फेल हो जाओ तो दोबारा एग्जाम दो, कोचिंग के बाद एग्जाम का पैसा खर्च करो। हाउ मच मनी इज बीइंग स्पेंट इन इंडिया ऑन आइल्स कोचिंग एंड आइल्स एग्जामिनेशन? आवर चेंबर इज डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट। वी विल कम आउट विद द स्टैटिस्टिक्स,
और हम अपनी डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब की तरफ से टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं कि आप ग्रामर के बगैर, कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, पढ़ाई को इतना बड़ा हवा मत बनाइए कि बच्चे घबराएं, बच्चे डरें। किसी को अपने इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर में लाने के लिए इतना बड़ा एक ऐसा पहाड़ मत बना दीजिए कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है, इंग्लिश बोलना सीखना, ये सारी चीजों को लेकर। आई थिंक इट इज वातावरण, इट इज एनवायरमेंट। जिस दिन बच्चे ये सोच लेंगे और हम कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ एप्स, कुछ एडटेक प्लेटफॉर्म कुछ फ्री आपके लिए लेकर आएंगे जहां से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। नाउ इम्बाइबिंग वैल्यूज ऑफ टुगेदरनेस। सबसे पहले जो भी आपकी नॉलेज है औरों के साथ शेयर कीजिए, जो कुछ भी आपको आता है औरों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी आदमी अपनी नॉलेज को क्या, किसी भी चीज को इस संसार से अपने साथ लेकर नहीं गया। मैंने बहुत सारी ग्रेवयार्ड में जाकर बातचीत की, टटोला, जो लोग चले गए हैं कुछ भी साथ नहीं लेकर गए। तो बांट दीजिए, जो कुछ आपको आता है शेयर कर दीजिए। इम्बाइबिंग वैल्यू ऑफ टुगेदरनेस, अकाउंटेबिलिटी, along with developing an inclination to create a change in the society, community and country। हमारा जो भारत है, हमारे बच्चे जो है वो इतने सक्षम हैं, वो इतना कुछ कर सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं प्रोग्रेस इन यूथ डेवलपमेंट। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसी के साथ साथ एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी चाहिए। आप मुझे कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी दे दीजिए, आप मुझे कोई भी कॉलेज दे दीजिए, मैं 6 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर उस इंस्टीट्यूशन को एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन बना सकता हूं। दीज आर ऑल स्ट्रैटेजीज, these are all strategies। Everything is a pure algorithm। You got to understand at what time, where, what is needed, what is required, what packaging has to be done। If you do what is needed at a particular time, in a particular proportion, in particular quantity, with particular quality, the result is bound to come। And most important is empowerment, encouraging, unleashing, unlocking the potential of every child। At the same time उनकी हेल्थ और वेलनेस, at the same time there should be a accountability of the institution। जो आपके बच्चे पढ़कर जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, 2 साल के लिए उनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूशन के बच्चे अच्छे एम्प्लॉयड हों, जिनको अच्छी ओपनिंग्स मिले, उनको अच्छी ग्रांट मिलनी चाहिए। अरे गधे घोड़े सब बराबर थोड़ी होने चाहिए। I think there should be an accountability। The time has come। It is very important। And finally, there should be a civic participation because civil society has to play a very important role। हम सबको इकट्ठे खड़ा होना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे बड़ी अच्छी चीज मिली, टॉप ऑफ माइंड, equipped for employment, health is wellness, and Greta's green path, study hard, play harder, one nation, one education। कैन यू इमेजिन इंडिया में कितने स्टडी बोर्ड हैं? कैन यू इमेजिन कितने स्टेट बोर्ड्स हैं? ओ माय गॉड, अगर आप उनको देखेंगे, क्यों ऐसा है? 12वीं तक की, 12th तक की एजुकेशन सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? और 12th के बाद डिसाइड कीजिए कौन सा बच्चा कहां जाएगा। जर्मनी के अंदर मॉडल तो आप पढ़ना चाहते हैं, स्किल की कॉपिंग तो करना चाहते हैं, सिंगापुर के मॉडल को तो समझना चाहते हैं। Why can't we have a similar kind of a, जब आपने सारे बैरियर उठा दीजिए, आपने कहा आर्ट, साइंस, कॉमर्स, नॉन कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कुछ भी सेपरेशन नहीं है, सब कुछ बराबर है। आपने कहा स्पोर्ट्स, करिकुलम, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर, योर आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, डांस, म्यूजिक, सब कुछ इंटीग्रेटेड है पूरे सिस्टम के अंदर। तो आप 12th तक का एक बोर्ड क्यों नहीं करते? Why don't you have a similar board? आप अपनी मातृभाषा में कीजिए, 5वीं तक कीजिए, 6ठी तक कीजिए, 7वीं तक कीजिए, अपनी जगह पर जहां पर आप हैं। You must pick up your regional language, you must pick up your mother tongue। At the same time, ladies and gentlemen, day and night our chamber is working। बेसिकली हम चाहते हैं कि आपको राहत मिले। जितना पैसा आइल्स पर खर्च हो रहा है भारत में आज की डेट में, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी विल डिस्कस वन ऑफ दीज डेज, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। वी वांट
यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग एनी मनी। वो कॉन्फिडेंस हम आपके अंदर लेकर आना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई आपको इसलिए मत डरा दे कि आपको ग्रामर नहीं आती, पहले ये सीखिए फिर इसके बाद ये आएगा। वी विल गिव यू द साइंटिफिक पैरामीटर्स एंड हाउ यू इंप्रूव योरसेल्फ, कि कौन सी न्यूज सुननी है, कहां कौन सी पिक्चर देखनी है, कौन सा डायलॉग सुनना है, कौन सा प्ले देखना है, हाउ डू यू पिक अप द लैंग्वेज द बेस्ट पॉसिबल वे इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। एजुकेशन के डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। डायरेक्ट इफेक्ट्स की बात करते हैं तो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, बेटर नॉलेज आती है और आपकी परसेप्शन चेंज होती है। इनडायरेक्ट अगर हम इफेक्ट्स की बातचीत करें तो एजुकेशन जो है वो मल्टीप्लायर सिस्टम के थ्रू पॉवर्टी को रिड्यूस करती है और इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पाते हैं, एंड इट इज बेसिकली ए सोशल कैपिटल। तो इस सब चीज को हम जब लेकर चलते हैं तो हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन, सस्टेनेबल एजुकेशन, नीड बेस्ड एजुकेशन, फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, इसलिए हमने स्लोगन भी लिया आपके साथ और एक चीज को हम लेकर चलते हैं, मेकिंग एजुकेशन एंड स्किल्स रेलिवेंट। ये न्यू डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन। स्किल एक्वायर कीजिए, कोई चीज और काम नहीं आएगी, हर चीज को आप दोबारा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी कॉम्पिटेंसी कोई आपसे नहीं छीन सकता, वो हमेशा आपके पास रहेगी। ओवरकमिंग द चैलेंजेस which are faced by various institutions, इसकी हम डिटेल में पूरी की बाद में बातचीत करेंगे। आप अपनी रिसोर्सेज की एलोकेशन को कैसे बढ़ाएं, आप अपने टीचर्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, आप अपने यूथ को कैसे इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, एंड देयर आर मेनी अदर वेज बाय विच यू कैन डू। आज का यूथ क्या महसूस कर रहा है, उसके पास सोशल मीडिया तो है, सब कुछ है, पर आप शायद इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे वो कितना अकेला है, कितनी आइसोलेशन है, एंजाइटी है, स्लीपलेसनेस है, रात को देर तक नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता, लॉस ऑफ रियलिटी है, एक एक प्लेटोनिक दुनिया में जी रहे हैं, एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। सपने देखना खराब नहीं है, लेकिन सपने वो नहीं है जो सोते हुए आते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। ड्रीम्स आर नॉट द वन विच कम टू यू व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ड्रीम्स आर द वन which make you get up and say no rest till the time you achieve your mission and your goal. लोनलीनेस है यूथ के अंदर, डिप्रेशन है, एडिक्शन है। मैं उसकी गहराई में आज नहीं जा रहा हूं, किन चीजों की एडिक्शन है हम सब इस बात को समझते हैं। 2030 का एक सीन आ रहा है, आज 2023 है, 7 साल के बाद किसी से पूछा गया और एक आदमी जो गिर गया और एक बच्चा उनमें से पूछ रहा है, हेल्प हेल्प हेल्प, इज देयर एनीवन out of all of you who is a doctor? He said, no, I'm a DJ. Second बोलता है, me too, I'm also a DJ, the same is with me, and me too. कहाँ गया वो सब कुछ? किस तरीके की दुनिया होगी? आप एक वर्चुअल वर्ल्ड से कहाँ पहुंचेंगे? There are a couple of things which we have to take. Now, what could be the problems of the moral education of youth? यहाँ पर मुझे प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी याद आते हैं, जो चेयरमैन हैं खासकर इंडक्शन प्रोग्राम के AICT के साथ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जब भी उनके साथ कभी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडेज यूथ, और वो कहते हैं कि बच्चों को हम एक मॉरल वैल्यूज और मॉरल एजुकेशन, क्या बच्चे उसे लेना चाहते हैं? क्या बच्चे उसे सुनना चाहते हैं? क्या बच्चे उसके प्रति इंटरेस्टेड हैं? कोई बात नहीं, बच्चों की बात भी सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ दिस नेचर अकर्स फ्रॉम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। वो कहता है मैंने पढ़ाई तो कर ली, मेरे पास डिग्री तो आ गई, ना मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ना मेरे को कहीं रोजगार मिल रहा है, मैं कहां टक्कर मारूं? Is not able to provide the required number of jobs. Reluctance of the employers to accept low-skilled and inexperienced employees. The problem of the youth employment is also a financial claim of the young professionals who are employers. Thus, young people looking for work but can't find the suitable job, suitable opening. Why not have a livelihood? Why can't we work out a system with the education? It should be the moral responsibility of that educational institution of higher learning to ensure that for the next 2 years, there should be a hand holding
of children those are passing out from their institutions. That should be done. It pushes for the search of, फिर क्या होता है जब बच्चों को वो नहीं मिलता तो illegal earnings, which often pushes to crime, drug addiction, leads to poverty, promotes the development of housing problem of the young people, restless रहना, frustration होना, बात बात पर short tempered होना, बात बात पर आज बच्चों की सहन शक्ति, the state program on providing young families with their own houses practically is to be implemented. That part has to be taken care of. जहां पर हम बच्चों को समझें, बच्चे बुरे नहीं हैं, बच्चे खराब नहीं हैं, बच्चे गलत नहीं हैं, हम खाली एक कागज का टुकड़ा डिग्री देकर उनको वहां से चर्न आउट कर रहे हैं, उस कागज के टुकड़े की भी बहुत दिनों के बाद जरूरत नहीं होगी, याद रखिएगा. Talking about youth की mental health, so they are trying to adopt and they are trying to adapt the best possible way whatever they can. And remember, every individual can make a difference. कोई ये सोचे अब तो मेरी उम्र हो गई, अब जाने का वक्त हो गया, अब मैंने क्या करना है, मैंने जो करना था कर लिया, अब तो बच्चे करेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन करेंगे. क्यों भाई, आप लास्ट डे तक सांस ले रहे हो ना. अगर सांस ले रहे हो तो जो कुछ भी कर सकते हो करो. आपको करना है, आप अपनी संस्था के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए कुछ कीजिए. और इसके अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, ऑल द रेगुलेशंस व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन. Here is the national integration when we talk about all the young boys and girls from entire India. They all are together on a common platform. No caste, no creed, no color, no place. कोई अरुणाचल से है, कोई हिमाचल से है, कोई मणिपुर से है, कोई नागालैंड से है, कोई उड़ीसा से है, और कोई दिल्ली से है, तो कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से. कहीं से भी हो सकते हैं बच्चे. दे कैन बी फ्रॉम एनी प्लेस. कल मैं आपके लिए एक टूरिज्म सॉन्ग चलाऊंगा. 1994 के अंदर हमारे चेंबर ने पहला टूरिज्म का सॉन्ग बनाया. भारत के द्वार हैं खुले, स्वागत में आपके, पग पग पे फूल हैं खिले, स्वागत में आपके. कहते हैं ना, आकर तो देखिए मेरे हिंदुस्तान में, यहां दिल बिछाए जाते हैं मेहमान की शाम में. आओ के दीप हैं जले, स्वागत में आपके, पग पग पे फूल हैं खिले, स्वागत में आपके, भारत के द्वार हैं खुले, स्वागत में आपके. जो हमारे टूरिस्ट गाइड्स हैं, उनके साथ मिलकर हम एक ऐसा अभियान शुरू कर रहे हैं, हम एक ऐसा प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इतने सालों के सारे, इतने देशों के भ्रमण करने के बाद, वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करने के बाद एक ही बात समझ आती है. जितनी मर्जी पॉलिसीज कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, स्ट्रेटजीज कीजिए, इनबाउंड कीजिए, आउटबाउंड कीजिए, डोमेस्टिक कीजिए, अल्टीमेटली कौन इंसान है जो आए वाले टूरिस्ट के साथ मैक्सिमम टाइम लगाता है? क्या कभी हमने उन पर ध्यान दिया? क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा? इट्स ए टूरिस्ट गाइड्स. और एक नई चीज शुरू हुई है कि 12th क्लास के बाद, क्योंकि जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, they all are graduates and post graduates and higher education, and they all hold the license from the Ministry of Tourism, Government of India, and they also have got a stamp from the Archaeological Survey of India to go to the monuments. But when we look at जो बच्चे 12वीं के बाद आए हैं, मैंने फिलहाल में ही अपने चेंबर से एक प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जो बच्चे 12th के बाद आए हैं, जिनको आप टूरिज्म फैसिलिटेटर बना रहे हो, व्हाई डोंट दे गेट अ पॉकेट मनी सो दैट दे आर फोकस्ड. एंड एट द सेम टाइम जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, अगर उनका सीजनल काम है और वो 6 महीने काम करते हैं टूरिस्ट गाइड के लिए, जिसको आप पीक सीजन कहते हैं, तो बाकी 6 महीने व्हाई कांट दे बी द वोकेशनल टीचर्स इन आवर कंट्री? Nobody knows India better than them, because they have seen entire India, they have traveled entire India, they know every nook and corner of India. मैं क्योंकि फौजी हूं, मैंने भारत का जो भी जगहों पर मैंने ट्रैवल किया है, मैं उस बात को समझ सकता हूं, what all is available in the country and what all you can see. So thereby all the tourist guide 6 months
Ministry of Tourism, Government of India should plan and think about it, how they can be engaged as a vocational teachers. उनको आप different schools के साथ लगा दो, कॉलेजेस के साथ लगा दो, उन सबको 6 महीने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एडॉक पे ले लो, and they can be the vocational teacher. You see where the tourism will go. Tourism is not theory, tourism is practical. And we always keep making big plans, big concept paper, big action plan, big road maps, big strategies. अरे भाई ग्राउंड रियलिटी इसको भी देखिए. चलिए आइए एक बड़ी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं. आज से ये भी सोचा है कि मुझे, क्योंकि बच्चों को आइल्स के साथ साथ मदद करनी है, तो हर एक बच्चे को मेरे साथ ध्यान से समझना है. हिंदी में भी समझेंगे, अंग्रेजी में भी समझेंगे. आई वॉन्ट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि मैं ये चाहता हूं हर भारतीय जो बाहर जाए वो बगैर कोई पैसे खर्च किए और सही ढंग से बाहर जाए, गलत ढंग से नहीं जाए. बहुत सारा पैसा आइल्स के ऊपर खर्च मत करें. अपने आप तैयारी करो, आपकी पैकेजिंग करेंगे, आपकी पूरी प्लानिंग करेंगे और आपको बताएंगे what exactly you can do and how you can do. ओके, ये प्रोग्राम YouTube पर जा रहा है. इस प्रोग्राम को आप बाद में भी देख सकते हैं. इस स्टोरी को आप अपने पास रोक कर 10 बार बाद में अपने आप पढ़ सकते हैं और इस स्टोरी का मॉरल ले सकते हैं और आप सीख सकते हैं. आइए चलते हैं. वैल्यू द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ. एक कहानी है, इसको हम लेकर चलते हैं. जो कुछ आपके पास है उनकी वैल्यू तो जानिए. देखिए, जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तब उनकी कीमत महसूस होती है, तब उनकी कमी महसूस होती है. फिर इंसान सोचता है मैंने माँ बाप खो दिए, सर से एक छत चली गई. लेकिन जब तक वो जिंदा होते हैं हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता है. दैट इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. वैल्यू द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ. आइए, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. लोग वैसे तो एक गिलास लेते हैं, उस गिलास में पानी डालते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है. आज हम उसकी डेफिनेशन चेंज कर देंगे. बहुत सारे ये भी कहते हैं आधे गिलास में पानी है, आधे में ऑक्सीजन है. उस डेफिनेशन को भी आज हम चेंज कर देंगे. लेट्स मूव अहेड. एक नई तरीके की स्टोरी है. आई एम ग्रेटफुल टू जितेंद्र जी, उन्होंने मुझे आज ये स्टोरी दी. थैंक यू वेरी मच. नाउ अ स्टोरी टेल्स दैट दो दोस्त, टू फ्रेंड्स, दे वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट. वो एक रेगिस्तान की तरफ से दो दोस्त चल रहे थे और ट्रेवल कर रहे थे. During some point of the journey, they had an argument. चलते चलते आपस में थोड़ा मनमुटाव हो गया. And one friend slapped the other one in the face. एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धड़ाक करके थप्पड़ मार दिया. अब जिसको थप्पड़ पड़ा, the one who got slapped was hurt. उसको दर्द तो हुआ, but without saying anything, उसने, क्योंकि वो रेतीले जगह से निकल रहे थे, तो उस रेतीली जगह के ऊपर अपने हाथ से लिखा, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन माय फेस. टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस. आज मेरे दोस्त ने मुझे एक तमाचा मार दिया. ये उसने रेत पर लिखा. दे केप्ट ऑन वॉकिंग until they found an oasis. वो देख रहे हैं आप सामने, एक oasis नजर आ रहा है. ठीक है. Where they decided to take a bath. उन्होंने कहा भाई चलो यहां पर नहाते हैं. The one who had been slapped, he got stuck in the mire and started drowning. जो जिसको थप्पड़ पड़ा था वो उस भंवर के अंदर जाने लगा, नीचे ड्राउन होने लगा. तो दूसरे वाले ने हाथ डालकर उसको बड़ा तेज करके बहुत जोर लगाकर उसको खींचकर बाहर निकाल लिया. आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम नियर ड्राउनिंग, जहां वो डूबने से बचा और बाहर आया, एंड ही रोट ऑन द स्टोन. उसने एक पत्थर पर लिखा. नीचे देखिए, एक पत्थर के ऊपर एक दोस्त लिख रहा है, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ. आज मेरे दोस्त ने मेरी जिंदगी को बचा दिया. द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम. जिस आदमी ने थप्पड़ मारा था और अपने दोस्त की जान बचाई थी, उसने उससे पूछा, आफ्टर आई हर्ट यू, यू रोट इन द सैंड. जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा. एंड नाउ यू रोट ऑन ए स्टोन. अब तुमने पत्थर पर लिखा. क्यों? व्हाई? द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, when someone hurts us, we should write it down in the sand.
where the winds of forgiveness can erase it away. कहता है जब किसी दोस्त से कोई दुख हो और अगर आप उसे अपने दिल में हमेशा के लिए नहीं रखना चाहते तो उसे रेत पर लिख दो, क्योंकि जब भी हवा चलेगी तो रेत के बहाव से वो चीज वहां से मिट जाएगी. बट when someone does something good for us and save our life, we must engrave it in the stone where no wind can ever erase it. लेकिन अगर कोई तुम्हारी जिंदगी को बचाता है और तुम्हारी जिंदगी को संवारता है और तुम्हें एक नया जीवन देता है, तो उसे कार्विंग करके तराश कर किसी पत्थर पर लिख दीजिए, ताकि कोई भी हवा का झोंका उसे उड़ाकर न ले जा पाए. द मॉरल ऑफ द स्टोरी का मॉरल क्या है? इट्स मच इजियर टू होल्ड ए ग्रज व्हेन यू फील रॉन्ग्ड, बट नेवर क्लोज योर हार्ट टू फॉरगिवनेस. मैं जानता हूं जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरा करता है, तो आपको दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन उसे जाने दीजिए, भूल जाइए, कोई बात नहीं. Sometimes we are too consumed with our own emotions that we are temporarily blinded by hate or grief. कई बार हम अपनी इतनी दुख और तकलीफ में होते हैं, हमें दूसरा नजर ही नहीं आता. दूसरे की जो भावनाएं हैं हमारी तरफ, वो हमें नजर ही नहीं आती. हम अपने पक्ष से ही सोचते रहते हैं. नेगेटिव इमोशंस विल ओनली ब्रिंग यू डाउन. जब भी आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको डाउन करेगा. लेटिंग गो टू द पास्ट, letting go of the past and valuing the people that love you is the way to live a rich, rewarding life. जो लोग दिल से आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वही आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा रिवॉर्ड और तोहफा है. What a beautiful story. Value the things you have in your life. आज जो आपके पास है, जो आपका अपना है, उसका गर्व महसूस कीजिए. आपके माता पिता जैसे मर्जी हो, पर वो आपके माता पिता हैं. आपका कोई अस्तित्व नहीं है. क्या आप इस संसार में आ सकते थे? आई एम नॉट अ बायोलॉजिकल टीचर, आई एम गोइंग टू टॉक बायोलॉजी, बट आपकी तो संसार में मौजूदगी, आपका तो वजूद ही आपके माता पिता से है. तो काहे का द्वेष, काहे की नाराजगी? माता पिता कभी कुछ कह भी दें तो. और मैं बीइंग ए फौजी इस गाने को बहुत प्यार करता हूं. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. कल मैं इस गाने को आपको सुनाऊंगा. किसके साथ? करोके के साथ. आज टाइम नहीं था, मैं करोके ला नहीं पाया. ये देखिए, कल रात को हम आपके साथ बातचीत करेंगे स्किल्स फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड. आपकी कौशलता, आपका हुनर, आपके अंदर ऐसा क्या है जो परमात्मा ने आपको दिया है? गॉड ने सबको डिफरेंट बनाया है. हम सब अलग अलग हैं. गॉड ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है. आप इस बात को समझ लीजिए. आप अपने पोटेंशियल को बाहर निकालिए, अपनी स्किल्स को बाहर निकालिए, अपनी कॉम्पिटेंसीज को बाहर निकालिए. कल एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ बातचीत करेंगे. आपके लिए एक नया रास्ता, एक नई रोड, एक नया पाथ, एक नया जॉब, एक नई सक्सेस, एक नया प्रोफेशन, एक नया वर्क, एक नई स्ट्रेटजी, एक नई कंसिडरेशन, एक नई यूनिकनेस के साथ कल रात को 8 बजे. लेकिन जाते जाते मैंने आपसे कमिट किया, मैंने आपसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप आइल्स की कोचिंग ना लेकर अपनी अंग्रेजी को रोज हमारे साथ इंप्रूव करेंगे. थोड़े दिनों के बाद आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव होगी. हम आपको कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे, कुछ एरियाज भी बताएंगे, कुछ और चीजें भी बताएंगे. आइए आज जाते जाते मैं अपने मेंटोर से आपको मिलवाऊं. ये मेरे मेंटोर हैं मिस्टर लेस ब्राउन. ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. इनको विकिपीडिया पर देखिएगा. व्हाट अ जर्नी ऑफ द लाइफ. आई सैल्यूट हिम. इनकी एक बहुत अच्छी सेइंग है,
उसी को कह के आज का प्रोग्राम हम लोग खत्म करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आप खुद भी यूट्यूब पर इसको रोककर इसको खुद से पढ़िएगा बाद में, और ध्यान से देखिएगा कि लेस ब्राउन क्या कहते हैं, if you want a thing bad enough to go out and fight for it, to work day and night for it, to give up your time, your peace, and your sleep for it, if all that your dream and scheme is about it, and life seems useless and worthless without it, and if you gladly sweat for it and fret for it and plan for it, and lose all your terror of the opposition for it, and if you simply go after that thing that you want with all your capacity, strength, and sagacity, faith, hope, and confidence, and stern pertinacity, if neither cold, poverty, famish, nor gout, sickness, nor pain, or body and brain can keep you away from the things that you want, if dodged and grim you beseech and beset it, with the help of God, you will get it. My mentor, Les Brown, great salutations to you. Ladies and gentlemen, कल रात आपसे 8 बजे पुनः मुलाकात होगी, और कल रात हम 8 बजे आपके साथ फिर से बातचीत करेंगे। और देखिए, टूरिज्म, ट्रैवल, एजुकेशन, एजुकेटर्स, स्किल्स, और उन्हीं के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए नई नई चीजें आपके साथ हम शेयर करेंगे। आवर यूथ, दे मैटर, यू मैटर, योर लाइफ matters, your contribution matters. This program comes from International Chamber for Service Industry Digital Inspirational Lab. मिलते हैं कल एक ब्रेक के बाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और देखिए, अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। बस ये गाइए, गाते रहिए, मुस्कुराते